Welcome all of you to class of condensed matter physics. In the previous lecture, we derived reciprocal lattice to simple cubic, face-centered cubic and body-centered cubic lattice, right? So now we will discuss Bragg's law and reciprocal lattice. We all know what is Bragg's law and direct lattice. ਇਹ ਜਿਹੜਾ chapter ਹੈ this started with X-ray diffraction and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we studied कि Bragg ने reflection ਦੇ principle ਨੂੰ use ਕਰਕੇ X-ray diffraction ਨੂੰ explain ਕੀਤਾ ਸੀ and he gave one law or we say a condition अगर वो condition satisfy होएगी only then diffraction would occur otherwise not and O equation C 2d sin theta is equal to n lambda. So that was all for direct lattice. Now we are going to study Bragg's law in reciprocal lattice. So let's do. So इसनो evolved construction भी बोलते हैं. So Bragg's law ਨੂੰ reciprocal lattice ਵਿੱਚ express ਕਰਨ ਲਈ evolved ਨੇ एक geometrical overview एक geometrical setup provide ਕੀਤਾ. Okay, so basically this was provided by evolved. So here as you can see in this figure, ray starting from this point A, it has been denoted with 1. So जो ray 1 है that is incident on crystal. So crystal is sitting at O. It is not visible but it is there. So जो incident ray है वो strike किती at O and then obviously it will get diffracted. So a ray 2 जड़ी है it shows the diffracted ray and a XY plane है which is the diffraction plane जिस plane which diffraction हो रही है. So AO represent the incident ray and OB represent the diffracted ray और दोनों दे जो length है that is 1 by lambda. We are supposing ठीक है 1 by lambda ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ we have rays incident rays ਜਾਂ waves diffracted rays ਜਾਂ waves ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹੇਅਰ जो असी लेंथ कंसीडर की है इन वैक्टर्स दी वो है 1 बाय लैम्डा यानी पहला ही असी वो रेसिप्रोकल इफेक्ट कंसीडर कर लिया परपेंडिकुलर इफेक्ट या इनवर्स इफेक्ट या रेसिप्रोकल इफेक्ट यू कैन से और थीटा इज द एंगल विच ईच ऑफ द वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई प्लेन सो एक्स वाई प्लेन है सो ए ओ वैक्टर भी थीटा एंगल बना रहा है एंड ओ बी वैक्टर भी थीटा एंगल बना रहा है इस एक्स वाई प्लेन नाल हुण अगर ओ सी ठीक है ए ओ भी हो गया डिस्कस ओ बी भी हो गया डिस्कस बट हुण ये जो ओ सी है सो इफ दैट ऑल्सो हैज लेंथ 1 by lambda इफ दिस इज द डायरेक्ट बीम यूजली की है ये है तुहाडी एक्स रे विच इज कमिंग अगर वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है देन इट विल गो अलोंग ओ बी ओके बट अगर वो डाइफ्रैक्ट नहीं होंगी इन केस नथिंग हैपन्स टू दिस इंसिडेंट वेव फिर की होएगा इट विल जस्ट पास थ्रेट सो अगर तक क्रिस्टल इस रे नू डाइफ्रैक्ट कर देंदा है देन इट विल गो अलोंग ओ बी अगर नहीं करता देन इट विल पास स्ट्रेट सो ओ सी जिहड़ी है उसका जो लेंथ असी कंसीडर करें दैट इज 1 by lambda which is what it is the direct beam passing undeflected through the crystal so अगर वो portion beam दा जो कि undeflected जा रहा है through the crystal ने उसनु डाइफ्रैक्ट नहीं किया उस रे नु so ray will simply pass straight so OC उस portion of ray नु denote कर रहा है जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुई जो कि डाइफ्रैक्ट नहीं हुई सो इन दैट केस जो एक प्लेन है सी बी
that will be perpendicular to Bragg's plane. So अगर ਅਸੀਂ इस चीज़ ਨੂੰ इस point ਨੂੰ join कर दईए then that will be perpendicular to Bragg's plane. Bragg's plane ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ diffracted rays ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, but here we are considering the length of all the vector as 1 by lambda. So ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਉਹ ਹੋਏਗਾ basically जो ये ਤੁਹਾਡਾ portion है BC that will be perpendicular to Bragg plane. So to be more precise, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਡਾਈਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਓ ਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਫਲੈਕਟਡ ਹੈ that is going straight, and 1 by lambda is the length of the vectors. So जो ये पोर्शन होएगा यानी कि एक डाइफ्रैक्टेड रे और एक अनडिफ्लेक्टेड रे ਨੂੰ join ਕਰਨ ਵਾਲਾ plane that will be your reciprocal lattice origin. origin ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ point ਲੈ ਲੋਗੇ and that will be your reciprocal lattice plane, क्योंकि Bragg's plane ਦੇ perpendicular कौन है? reciprocal lattice plane ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ठीक. So this condition is valid for all Bragg plane which produce diffraction. According to definition of reciprocal lattice, CB is in the direction of reciprocal lattice vector G. So ਜਿਹੜਾ CB है ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਇਹ Bragg plane ਦੇ reciprocal ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ perpendicular ਹੈ. Bragg plane ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ? direct lattice ਦਾ part ਹੈ Bragg plane. Simply Bragg plane direct lattice ਦਾ part ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि BC is perpendicular to Bragg plane, इट मीनस BC किस दा पार्ट हो गया? रेसिप्रोकल लैटिस का, क्योंकि साढ़े कोल सिर्फ दो ही टाइप के लैटिस है, डायरैक्ट एंड रेसिप्रोकल. और रेसिप्रोकल सानू पता है कि वो बनता किवें है? बाय ड्राइंग ए नॉर्मल, राइट. सो जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर होएगी या नॉर्मल होएगी इट विल कोरिस्पॉन्ड टू रेसिप्रोकल लैटिस. सो और रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर केड़ा हुंदा है? G. सो अगर CB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ परपेंडिकुलर है Bragg plane ਦੇ, यानी कि it is perpendicular to direct lattice, that means it belongs to reciprocal lattice, and if it belongs to reciprocal lattice ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ reciprocal lattice vector ਕੀ ਹੋਏਗਾ? G. T ਅਸੀਂ usually use ਕਰਦੇ ਹਾਂ for direct lattice और reciprocal ਲਈ ਅਸੀਂ G use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है. You must have remembered. So if the line CB cuts the plane x, y and D, अब ये plane जो था x, y, यानी कि ये जो एक line जा रही है बीच में, this is your x, y plane. So here basically, so this is your kind of x and y plane, and it cuts this vector CB, or you can say the xy plane also in D. So line CB xy plane को D पे cut कर रही है. So now we have triangle OCD. Now you can see the triangle here. I have shown this highlighted portion. This is the triangle OCD, and here also this portion is the triangle OCD. So OCD and obviously BC की है, this is perpendicular. So obviously we have obtained a right angle triangle. So right angle triangle which sin theta किवें find होंदा है? Perpendicular upon hypotenuse. अगर theta is here, so perpendicular की होया CD. CD is perpendicular and hypotenuse will be OC. Okay. So OC is hypotenuse and CD is perpendicular. So sin theta is CD upon OC, and sin theta is CD upon OC is what? Length of the vector. ਅਸੀਂ OA, OB और OC ਇਹਨਾਂ ਦੀ length consider ਕੀਤੀ ਹੈ 1 by lambda. So now CD is sin theta upon lambda. सो सी बी की हो गया. अगर सी डी फाइंड कर लिया, सो ऑब्वियसली सानू पता है कि जिहड़ा ये सी बी वैक्टर सी ये एक्स वाई प्लेन नू कट कर रहा, ठीक है. सो एक इस दे नाल ही सी बी भी तो हाफ विच स्प्लिट हो गया. सो अगर सानू सी डी पता है तो सी बी इज सिंपली 2CD. सो सी बी आ गया टोटल जो तुहाडा रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन कह लो,
that is 2 sin theta upon lambda. Fine. Now Bragg's law अगर first order diffraction होवे first order तब Bragg's law ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? Usually Bragg's law is 2d sin theta is equal to n lambda और n ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? Order. First order रहता है n1, second order रहता है n2, third order रहता है n3 and so on. So अगर first order है in that case Bragg's law is 2d sin theta is equal to lambda. ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ एक्सप्रैशन ऑब्टेन होया है. सो अगर असी 2 sin थीटा अपॉन लैम्डा कर लिए देन वी ऑब्टेन 1 by d. 1 by d what is 1 by d? यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग. एंड कैन यू रिलेट इट विद समथिंग? ऐदा दी कोई चीज़ सी विच वॉज इक्वल टू दी और आई एम सेइंग परपेंडिकुलर या फिर आई शुड से इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग. की चीज़ होंगी है विच इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग? ऑब्वियसली जोड़ा असी रेसिप्रोकल लैटिस बनाने. ठीक. सो नाउ इक्वेशन 1 and 2 तो सानू की पता चलता है दैट सी बी रिप्रेजेंट्स ए रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर हैविंग अ लेंथ 1 by d बिकॉज रेसिप्रोकल लैटिस ओ लैटिस होंदा है जिसदी की लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरएटॉमिक स्पेसिंग. ठीक है. सो सी बी इज सानू ये क्लीयर हो गया कि सी बी इज रेसिप्रोकल. और हले अगर नहीं भी होया क्लीयर बट द थिंग इज सी बी साडे कोल आ गया 2 sin थीटा अपॉन लैम्डा. फिर असी ब्रैग लॉ नू यूज़ किया. ब्रैग्स लॉ यानी जिहड़ा डायरैक्ट लैटिसली वर्क करता है. उस तो सानू पता चलिया कि अगर इस तरह का एक्सप्रैशन होवे 2 sin थीटा अपॉन लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ देन वी ऑब्टेन 1 by d यानी कि सी बी इज इक्वल टू 1 by d. सो सी बी वो चीज़ है विच इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग. और ऐदा दी केड़ी चीज़ है विच इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग? दैट इज़ द रेसिप्रोकल लैटिस. सो इस तो क्लियर हो गया कि सी बी इज अवर रेसिप्रोकल लैटिस. ठीक है. और ये जो ऑब्जर्वेशन है और द कंस्ट्रक्शन इट कैन बी मेड फॉर एनी सेट ऑफ प्लेन्स बट किस दे लई? जिस दे लई ब्रैग डाइफ्रैक्शन अक्कर हो. ठीक है. जिस दे लई इट इज पॉसिबल. सो if a sphere of radius 1 by lambda is drawn, so in general now we are just summing up with center at O, then C will be the origin of reciprocal lattice in the reciprocal space. So जब भी ऐदा दा कोई sphere होए जिसदा radius 1 by lambda है, so lambda इत्थे एक काफ़ी वड्डा रोल प्ले कर रहा है. ये 1 अपॉन लैम्डा लेने का मतलब ही ये है कि वी वांट टू टॉक अबाउट रेसिप्रोकल लैटिस. And since angle between direction of incident and diffracted beam can have any value between 0 and 180, so diffracted ray can go in any direction in space so that the vector representing it has its tip anywhere on the surface of the sphere of radius 1 by lambda and centered at O. And this sphere is called Evol's sphere. So ultimately कोई भी ऐदा दा sphere है, ठीक है, जिसका रेडियस की है 1 by lambda और उसका सेंटर O है, तो जो पॉइंट C बनाया सी दैट विल बी द ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस. जो पॉइंट C होएगा उतों रेसिप्रोकल लैटिस स्टार्ट होएगा. और ऐदा दे स्फेयर नू वी कॉल एवॉल्व स्फेयर बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एवॉल्व कंस्ट्रक्शन. ठीक है. द टॉपिक इज एवॉल्व कंस्ट्रक्शन. सो ये चीज़ क्लियर हो गई. सो यूजली यू विल फाइंड कि explanation part is more and जो derivation part है that is quite less. So to express Bragg equation in reciprocal lattice हुन ultimate goal की है असी ये तो दसता कि reciprocal lattice वाला plane कित्थों start होएगा और केड़ा plane है. We told that CB is the reciprocal plane. C point तो reciprocal lattice जिड़ा है वो start होएगा. But main जो मोटिव सी दैट वॉज टू फाइंड ब्रैग इक्वेशन इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फॉर्म. सानू पता है ब्रैग इक्वेशन इन डायरेक्ट लैटिस फॉर्म बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो वट इज द ब्रैग इक्वेशन इन रेसिप्रोकल लैटिस फॉर्म. क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस भी तो एक तरह का है तो लैटिस ही एंड अगर तुसी रेसिप्रोकल लैटिस दा रेसिप्रोकल ले लो then you will obtain direct lattice back. Okay, so now what do we have to do?
सपोज ऑल द वैक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। सो तुहानू पता है कि जब असी डायरैक्ट तो रेसिप्रोकल विच जंप करते हैं 2 पाई इस फैक्टर नू तो असी हमेशा कंसीडर करते ही हाँ। सो दैट रेडियस हुण की बन गया, पहला रेडियस असी लिखा है 1 बाय लैम्डा, बट हुण कह दिता कि हर चीज़ हर वैक्टर 2 पाई नाल मल्टीप्लाई हो गया। सो इन दैट केस द रेडियस बिकम्स 2 पाई बाय लैम्डा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ AO ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ OB ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ OC ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ, ਔਰ ਜੋ CB ਸੀ that was equal to what? That was equal to 1 by d। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। CB is 2 sin theta upon lambda, and what is 2 sin theta upon lambda? 1 by d। So CB 1 by d c, but since now we are multiplying all the vector with 2 pi, so CB भी बन गया 2 पाई बाय d। and सानू पता है that CB represent reciprocal lattice vector G। Therefore in a Wald sphere so form, if K and K dash are incident and diffracted vectors, ठीक है। अब दोबारा तो असी एक स्फेयर बना रहे हैं, दोबारा तो असी एक ओरिजिन लिता है, बट इत्थे हुण असी डैश डैश A डैश O डैश B डैश C डैश ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हुण ये जिहड़ा स्फेयर बन रहा है डायरैक्ट लैटिस विच नहीं बन रहा, रेसिप्रोकल लैटिस विच बन रहा है। नाउ वी हैव ऑब्टेन रेसिप्रोकल लैटिस। हुण उस रेसिप्रोकल लैटिस विचों असी ब्रैग इक्वेशन फाइंड करनी है, ओदी ब्रैग इक्वेशन, ओदा ब्रैग्स लॉ फाइंड करना है। ओके, सो हियर नाउ दिस A डैश O डैश रिप्रेजेंट इंसिडेंट वेक्टर या इंसिडेंट बीम, O डैश B डैश रिप्रेजेंट डाइफ्रैक्टेड। सो this A dash O dash is K and O dash B dash is K dash। Okay, so this A dash O dash is K and O dash B dash is K dash। Further सानू पता है कि C dash B dash की है, हुण ये तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है विच इज G। नाउ यू कैन सी एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया अगर असी सारिਆਂ ਨੂੰ ज्वाइन कर दीए। हुण ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर अगर असी यूज़ करिए तो तुहानू पता होना चाहिए कि ये जो वैक्टर एरोज ने, अगर एक वैक्टर दा हेड दूजे वैक्टर दी टेल नाल ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, दैन उस वैक्टर दी टेल तो जिहड़ा वैक्टर स्टार्ट हो रहा है, और अगर उस वैक्टर दा हेड इस सैकेंड वैक्टर दे हेड नाल ज्वाइन होए, सो दिस बिकम्स योर अल्टीमेट रिजल्टेंट। O dash C dash plus C dash B dash is equal to O dash B dash। ऐदा ही तो सही रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर्स फाइंड करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन यूज़ करके। ओके, सो तुहानू की देखना है, एरोज दी डायरेक्शन देखनी है। सो इत्थे O डैश C डैश प्लस C डैश B डैश विल बी इक्वल टू O डैश B डैश। सो व्हाट इज O डैश B डैश? K डैश। व्हाट इज O डैश C डैश? एंड हेयर O डैश C डैश नू असी ले रहे हैं K। ओके, सो this is simply K। why? because अगर O dash C dash की रिप्रेजेंट कर रही है अनडिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम। सो अगर क्रिस्टल ने डिफ्रैक्ट ही नहीं किया एक्सरे बीम नू, तो जिदा वो आई उदा ही वो पास हो जाएगी। सो जो A डैश O डैश है वही O डैश C डैश होना चाहिए। सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो K। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन दैट K डैश इज इक्वल टू K प्लस G, because C dash B dash एक ही है reciprocal lattice plane vector, reciprocal lattice vector। so K dash is equal to K plus G, so K dash minus K is equal to G। हुण अगर देखा जाए तो जो मैग्नीट्यूड है K dash vector दा और K vector दा वो सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज सारियां दा जो वैक्टर दी लेंथ है वो असी की लिती है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। सारे वेक्टर्स दी लेंथ तो सेम ही है। A डैश O डैश और O डैश B डैश विच डिफरेंस की है? सिर्फ एंगल का डिफरेंस है, बिकॉज O डैश B डैश इज मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी सारा कुछ सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। असी हुणे लिखिया सी सारियां दा जो मैग्नीट्यूड है वो 2 पाई बाय लैम्डा ही है। So K dash the magnitude is equal to K the magnitude। What is K dash? This thing K plus G।
ਸੋ k plus g ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, k plus g dot k plus g that is equal to k square। ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, k dot k plus g dot k plus k dot g plus g dot g। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ then that becomes this thing, square ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। so k dot k will give us k square, g dot g will give us g square। ਹੁਣ ਬਚੇ g dot k and k dot g, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ is commutative। so a dot b is equal to b dot a। so g dot k और k dot g दोनों सेम ही ने, सो इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2k dot g। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, k square plus g square plus 2k dot g is equal to k square, but this k square will get cancelled with this k square and we are left with 2k dot g plus g square is equal to 0। so this is the final expression and which is known as Bragg's law in terms of reciprocal lattice vector। so अगर reciprocal lattice ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਸ ਲਾਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ 2d sin theta is equal to n lambda, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਗਸ ਲਾਅ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2k dot g plus g square। so here g is what, reciprocal lattice vector। so this is also one of the important topics। next comes Brillouin zones। so ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ that reciprocal lattice vector helps us to find Brillouin zones। Brillouin zone same ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਗਨਰ ਸੀਡ ਸੈੱਲ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ smallest unit cell ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਨਰ ਸੀਡ ਸੈੱਲ कहते हैं। डायरेक्ट लैटिस विच smallest unit cell हो गया विगनर सीड सेल, रेसिप्रोकल लैटिस विच smallest unit cell हो गया Brillouin zone। बस इस तरह तुसी याद रखना है। सो Brillouin zone इज प्रिमिटिव सैल इन रेसिप्रोकल लैटिस। इसका सब तो छोटा बेसिक सैल जो होएगा, तुसी ये भी समझ सकते हो कि जिदा डायरेक्ट लैटिस विच असी यूनिट सैल बोल देने आ, उसी तरह रेसिप्रोकल लैटिस विच जो एक सब तो छोटा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम वाला सैल होएगा, प्रिमिटिव सैल बिल्कुल छोटा स्मॉल वॉल्यूम वाला, दैट इज नोन एज Brillouin zone। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਗਨਰ ਸੀਡ ਸੈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜੋ, ਰੀਡ ਦੀ ਹੋਲ ਸਟੈਪਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Brillouin zone ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ everything is just reciprocating I'm saying here, because जो भी चीज़ असी पढ़ी डायरेक्ट ਲਈ रेसिप्रोकल ਲਈ है सब कुछ उदा ही, बट एक रेसिप्रोकल ਦਾ डिफरेंस है। जो चीज़ आई मीन डिफरेंस ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी चीज़ इनवर्स होएगी या रेसिप्रोकल विच होएगी, बट ਉਹਦਾ नेचर ऑल इन ऑल सेम होएगा। किसी चीज़ ਨੂੰ बनाने ਦਾ वे बिल्कुल सेम है, बट स्टिल वो बन किसी रेसिप्रोकल स्पेस विच रही है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। So what do? We select every G from origin and place planes perpendicular to G at vector midpoint. It exhibit all the wave vector which can be bifurcated। तो एक तरह से हमने वही करना है कि हर origin से हमने एक वेक्टर G रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनाना है और फिर उस पे हमने प्लेन्स परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर हम उन सबको ज्वाइन करेंगे। सो अब हम एक सिंपल स्क्वायर लैटिस के लिए Brillouin जोन बना के देखते हैं। सो इट इज सिंपल स्क्वायर लैटिस ऑफ साइड ए। तो ये 2 डायमेंशन में बात हो रही है, हमने क्यूबिक लैटिस नहीं बोला, सिंपल क्यूबिक लैटिस नहीं है, सिंपल स्क्वायर लैटिस है। ओके, सो स्क्वायर इज 2 डायमेंशनल फिगर। सो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही वेक्टर चाहिए, ए एंड बी। A corresponds to ai cap and b vector corresponds to aj cap।
Why aj cap? Because we are talking about square. So square lattice, so that's why magnitude is a. So अब corresponding reciprocal lattice vector हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल लैटिस की बात कर रहे हैं, हमने कोई फेस सेंटर नहीं बोला, कोई बॉडी सेंटर नहीं बोला, तो सिंपल मीन्स सिंपल। तो सिंपल के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 पाई अपॉन जो भी मैग्नीट्यूड है इंटू आई कैप, 2 पाई अपॉन मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप। सो हम ए स्टार और बी स्टार लिख सकते हैं। अब जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है इसको हम लिखते हैं एच ए स्टार प्लस के बी स्टार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा बन गया रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। लेट के डैश फॉर द एक्स रे इज, अब हमने के वेक्टर लिखना है क्योंकि हमने एक्चुअल में ब्रैग्स लॉ यूज करना है, और ब्रैग लॉ में हमें क्या चाहिए, जी एंड के। तो अब हम के लिख लेते हैं, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। तो अब हमने के और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो इक्वेशन सेज 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यानी पहले तो हमें के और जी में डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या आ जाएगा, के एक्स 2 पाई बाई ए एच प्लस के वाई 2 पाई बाई ए इंटू के, और फिर जी का होल स्क्वायर। तो 2 पाई बाई ए होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So we get 2kx, or I can write 4kx pi h upon a plus 4ky pi k upon a is equal to, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं इस टर्म को। सो ऑन ओपनिंग द स्क्वायर्स वी गेट माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये 4 कैंसल आउट हो गया, और इधर से ये जो a था डिनोमिनेटर में, ये भी इस a स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एच के एक्स, और पाई भी कैंसल आउट हो गया। सो वी हैव एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तब ये जो इक्वेशन 4 है, दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन ऑफ के एक्स एंड के वाई। सो देयर इंटरसेप्ट्स, अब इंटरसेप्ट कैसे होता है, आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये पोर्शन उसका हो गया एक्स इंटरसेप्ट, कि वो एक्स एक्सिस पे आके कहां जाकर वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दिस इज वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई एक्सिस पे कहां जाके हिट कर रही है। तो व्हाट इज मेन पॉइंट, जब हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं, यानी कि जब आपकी लाइन या कोई भी मतलब फैमिली ऑफ लाइंस है, या वट एवर यू हैव, वट एवर इक्वेशन इज देयर, वो एक्स इंटरसेप्ट पे जब टच करती है तो उस केस में उसका y कंपोनेंट 0 हो जाता है। सिमिलरली जब हम y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो उस केस में x कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो अब अगर हमने इंटरसेप्ट निकालना है kx एंड ky, तो kx निकालेंगे तो उस केस में ky 0 हो जाएगा, और जब ky निकालेंगे उस केस में kx 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जब हमने kx निकाला तो हमने ky को 0 कर दिया, तो ये टर्म सेकेंड टर्म चली गई, रिमूव हो गई, और हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच। सिमिलरली y जो के वाई निकालना है उस केस में अब क्या होगा, के एक्स 0 हो गया। तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, दोनों इंटरसेप्ट्स आ गए। सो नाउ हेयर यू कैन सी दिस फिगर, ये बिल्कुल वैसी है जैसे विग्नर सीड सेल था। ठीक है, सिंपली मेक दीज लाइन्स, उसके बाद लाइक दिस। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां से लाइन आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से, और उसके बाद यहां से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से।
ठीक है। अब हमने सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम देखना है इस पूरे में से। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम क्या बन रहा है, जो पहली हमारे पास ऑब्टेन हो रही है वो है ये पोर्शन, ठीक है। और प्लस क्योंकि हमारे पास यहां से सेंटर से ये भी क्रॉस होगा, जो कि हमारा के वाई एंड के एक्स है। तो ये है सबसे स्मॉलेस्ट, दिस पोर्शन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। सबसे अंदर को जो बनता है सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम वो ये है। तो ये है आपकी फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ठीक है, सबसे अंदर वाली। सो जैसे जैसे अब इससे बाहर निकलते जाओगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ब्रिलियंट जोन्स आ जाएंगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सबसे इनसाइड जो है दैट इज योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। उसके बाद देखो ये बन रहा है आपका नेक्स्ट। सब यहां पर आप देखो तो ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट वाले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके बिल्कुल नेक्स्ट यही आता है। सो दिस इज योर सेकेंड ब्रिलियंट जोन। इसी तरह आप इसको और एक्सटेंड कर दो तो आपको और स्ट्रक्चर मिलेगा विच विल बी योर थर्ड ब्रिलियंट जोन एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन में ब्रिलियंट जोन हम इसी तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल दैट इज द ब्रिलियंट जोन। तो H और K इनकी वैल्यूज कैसी होंगी, इंटेग्रल वैल्यूज। तो आप इनमें यहाँ पर आप सिंपली ऐड करते जाओ। आपने क्या क्या करना है, के एक्स के वाई ही है, ठीक है, सारी जगह। जैसे यहाँ के वाई पाई बाय ए, क्योंकि ये आपका ओरिजिन से ऊपर है, सो ओरिजिन से ऊपर पाई बाय ए, ओरिजिन से नीचे माइनस पाई बाय ए। सिमिलरली के एक्स, ठीक है, ओरिजिन से टू द राइट पाई बाय ए, ओरिजिन से लेफ्ट माइनस पाई बाय ए। फिर जहां पर वो ऐड हो रहे हैं तो वहां ऐड करना है, जहां सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यू कैन ऑब्टेन द वैल्यूज, ठीक है। तो अगर हम h को 0 लेते हैं और k को प्लस माइनस 1 लेते हैं, या h को प्लस माइनस 1 लेते हैं और k को 0 लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं kx और ky की। यानी कि हर सिचुएशन में kx वही प्लस माइनस पाई बाय ए, ky भी प्लस माइनस पाई बाय ए। सो पाई बाय ए तो फिक्स ही है, सिर्फ साइन चेंज होगा। सो ये कितना बन गया के एक्स और के वाई, यानी कि इसके भी प्लस पाई बाय माइनस पाई बाय प्लस पाई बाय माइनस पाई बाय, तो यानी कि सेट ऑफ 4 लाइंस बन गई, ठीक है। तो ये जो एरिया है जो ये 4 लाइनें एनक्लोज करेंगी दैट इज योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक, जब आपका h 0 हो, k प्लस माइनस 1 हो, या k 0 हो और h प्लस माइनस 1 हो, तो उस केस में हमारे पास के एक्स और के वाई की ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो टोटल 4 लाइंस बन गई। तो ये 4 लाइंस मिलके जो एरिया इनक्लोज कर रही हैं वो है आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल छोटे ये जो 4 लाइनें थी, ये 4 लाइनें कौन है, आप इसके साथ रिलेट भी कर सकते हो। ये पाई बाय ए, ये हो गया के वाई इज इक्वल टू पाई बाय ए क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है, ये ओरिजिन से नीचे है तो के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय, ठीक है। उसके बाद ये के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय, ये है टू द राइट ऑफ ओरिजिन, और ये हो गई माइनस, और आई वुड से के एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय, क्योंकि ये टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। यही 4 लाइनें हैं, ठीक है। इन 4 लाइनों ने जो एरिया इनक्लोज किया, दिस इज योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। सिमिलरली अगर हम h को प्लस माइनस 1 ले लें और k को भी प्लस माइनस 1 ले लें, तो उस केस में हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशन मिलती हैं वो इस तरह से है। इक्वेशन 4 को आपको यूज करना है, ये इक्वेशन 4, ओके, दिस इज द इक्वेशन। अभी ये जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं ये इसी इक्वेशन में पुट करके निकाल रहे हैं कि आपका h क्या हो, k क्या हो, देन व्हाट विल वी ऑब्टेन, ठीक है। सो इसी में सब्स्टिट्यूट करके हर बार हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेट आता है, ये भी सेट ऑफ 4 लाइंस है। अब जो ये लाइंस एरिया इनक्लोज कर रही हैं वो है लिविंग बिहाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, दैट इज टर्म्ड एज सेकेंड ब्रिलियंट जोन। तो फर्स्ट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, एंड देन ये भी बट हैं 4 लाइंस ही जो कि इस एरिया को
कवर कर रही हैं, इंक्लूड कर रही हैं, एनक्लोज कर रही हैं. सो दिस इज योर सेकेंड ब्रिलियंट जोन. ठीक है, यूजली हम फर्स्ट और सेकेंड के बारे में ही डिस्कस करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, जो कि हमने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन पढ़ा, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड ब्रिलियंट जोन, how to obtain first brilliant zone and second brilliant zone. ठीक है, so that's all for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ब्रिलियंट जोन फाइंड करेंगे, फिर से सिंपल क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए. दिस इज व्हाट वी डू ऑलवेज. ठीक है, सो थैंक यू.